ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। आज से पुनः प्रारंभ करते हैं। रोशिक करोगे पिछले विषय का थोड़ा पुनरावर्तन करके और फिर आगे ले लो। ठीक है, प्रणव भाई करो। हाँ गौरी। हाँ प्रणाम राजा, મને એક બે ક્વેશ્ચન્સ છે. પ્રણામ રાજા, સંભળાય છે? હેલો, બોલો હા બોલો। રાજા મને એક બે ક્વેશ્ચન્સ છે. હા બોલો બોલો। આપણે જે 604 જે પેજ નંબર છે ને એમાં લાસ્ટ પેરેગ્રાફ છે, ત્યાં એવું છે કે અહીંયા જે લખ્યું છે કે ભગવદીય की तनु वित्तजा में जो तनुजा अथवा वित्तजा सेवा में खंडित करी देत है सो बहिर्मुक्ता को 8मो प्रकार ही है. એટલે જે આ 8મા પ્રકારમાં બતાવ્યું ને તો એ જે આશિષ્ટ કરે છે, જે ભગવદીય અને આશિષ્ટ જે આશિષ્ટ કરે છે એની તनु વિત્તજા ખંડિત થઈ રહી છે કે પછી જે ભગવદીયને હેલ્પ કરી રહ્યા, જે ભગવદીયને જે ભગવદીય છે જે હેલ્પ લઈ રહ્યા છે એમની તनु વિત્તજા ત્યાં ખંડિત થાય છે. એ મને થોડું સમજવું હતું અને એ કેવી રીતે સમજી શકાય, એટલે કેવી રીતે તनु વિત્તજા ખંડિત થઈ રહી છે? क्योंकि तनु वित्तजा जो है वो समर्पण खुद के किए पर होना है। किसी के भी और के किए हुए समर्पण में अगर हम पार्टिसिपेट भी करते हैं तब भी वो 100% हमारा समर्पण नहीं कहलाया जा सकता है। उस वजह से राजा फरीवार एक्सप्लेन करो ने, खबर ना पड़ी। हाँ मतलब मेरा पूरा समर्पण तब हो सकता है जब किसी भी और के पार्टिसिपेट किए बिना हम खुद जो हैं वो पूरा समर्पण करें, अर्थात सेवे हमारे हो, घर हमारा हो, द्रव्य भी हमारा हो, देह भी हमारा हो। तब अगर किसी और को हम असिस्ट करते हैं तो उस स्थिति में वो तनु वित्तजा पूरी नहीं कहलाई जा सकती, परिचर्या होती है केवल, जो मजबूरी में की जाने वाली क्रिया है। અચ્છા, એટલે જે આશિષ્ટ કરે છે તો એની તનુ વિત્તજા, પણ અહીંયા કે છે ને તનુ વિત્તજા, એમાં એમની તનુ વિત્તજા ખંડિત થવાનું તો શું એવું કઈ જે આશિષ્ટ કરી રહ્યું છે એમની તનુ વિત્તજા તો ખંડિત, એ તો કશું એની તનુજા ખાલી તનુજા જ વપરાઈ રહી છે ને, અને એ તો પાછી ભગવદીયમાં વપરાય છે ને, એમના ઠાકોરજીમાં તો એવું વપરાતું નથી. તો ठाकुर जी का मतलब ठाकुर जी की भी वो परिचर्या हो सकती है, हमें वो जितना तब तक तो वो व्यक्ति कर सकता है ना, हमारे इंडिपेंडेंस नहीं हो सकता है। हाँ राजा, थोड़ू ब्रेकअप थयो आपनो, संभळाયું नहीं। मैंने ये कहा कि उसमें हमारा पूरा इन्वॉल्वमेंट और हमारी इंडिपेंडेंस नहीं होती है। अच्छा, એટલે અહીંયા એટલે તનુ વિત્તજા સેવા में खंडित करी देत है छलसो, એવું કહે છે ને, छलसो वा भगवदीय की तनु वित्तजा में जो तनुजा अथवा वित्तजा सेवा में खंडित करी देत है। તો હજુ પણ એટલે મને ખબર ના પડી, છલસો એટલે કોણ, કેવી રીતે છલથી થઈ કરે છે, લાઈક તનુ વિત્તજા સેવામાં खंडित? मतलब नहीं समझ में आता कि उसमें कोई और व्यक्ति को हमने इन्वॉल्व कर लिया, परंतु उससे हमारी जो भक्ति है वो खंडित हो जाती है। मेरा पूरा वो नहीं हुआ, किसी और कोई और भी उसमें पार्टिसिपेंट बन गया, ऐसा कहना चाह रहे। अच्छा ओके राजा, હવે ક્લિયર થયું।
અને રાજા બીજું એક એ હતું કે આપણે અન્યાશ્રયના વિષયમાં આપણે જોયું હતું ને કે બધું આપણે પહેલા બી ચર્ચા થઈ હતી કે ભાઈ જે હવે લાઈક ગણેશ ચતુર્થી હોય છે તો ગણેશજીની સ્થાપના જ્યાં થાય છે ત્યાં તો હવે શાસ્ત્રીય મર્યાદાથી થતું નથી, એટલે ત્યાં એટલે નવરાત્રીમાં પણ એવું સેમ છે રાઈટ, ત્યાં દેવી દેવતાઓ લાઈક તિરોહિત છે, લાઈક ત્યાં એવી શાસ્ત્રીય મર્યાદા કઈ જળવાતી નથી. તો અને આપણે લાસ્ટ ટાઈમ પણ એવું મેન્શન આપણે જો અન્યાશ્રયના વિષયમાં ભણ્યા હતા તો કે આવતા જતા રસ્તામાં જો અન્ય દેવોનું કોઈ મંદિર આવે તો એમને નમન કરવામાં કોઈ દોષ નથી. તો આપણે એવું થતું હોય કે આ જે ગણેશ ચતુર્થીમાં ગણપતિ હોય કે એ નવરાત્રીમાં આ ગરબા થતા હોય તો ત્યાં ગણપતિમાં કેવું કે બધું ડેકોરેશન હોય, લાઈક ગણપતિના દર્શન કરવા માટે નહીં પણ ત્યાં ડેકોરેશન હોય કે ચલો ચંદ્રયાનનું થીમનું આમ ડેકોરેશન થયું છે તો ત્યાં બધા વૈષ્ણવો પણ હવે એવું જોવા માટે ગણપતિના દર્શન કરવા કે એવા ભાવથી નહીં પણ એ થીમને જોવા કે બધી જગ્યા પર કેવી રીતે એનું ડેકોરેશન થયું છે એવું બધું જોવા માટે એ જતા હોય તો અને ગરબામાં પણ લાઈક શોખ છે ગરબા કરવાનો, ભલે ત્યાં માતા કે કોઈ દેવી બિરાજતા નથી, તિરોહિત થઈ ગયા છે એવી મર્યાદા નથી જળવાતી, પણ થોડો શોખ હોય એના કારણે પણ ત્યાં ગરબા કરવા જતા હોય રાઈટ. હવે વૈષ્ણવ પણ એવું કરતા હોય તો એ ફિઝિકલ અન્યાશ્રય તો કહેવાશે ને રાજા, કારણ કે આપણે જે અન્યાશ્રય ભણ્યા હતા ભલે ત્યાં તો દેવતાઓ હવે તિરોહિત થઈ ગયા છે એવી શાસ્ત્રીય મર્યાદા જળવાતી નથી, પણ આપણો અંદરનો મનથી તો આપણને એવું છે ને કે ભાઈ ચલો આવું જોવા જઈએ તો આપણે તો એને અવોઇડ જ કરવું જોઈએ કે પછી એટલે એમાં મને થોડું સમજવું હતું કે એમાં કેવી રીતે સમજી શકાય. मतलब वैसे बहुत आपत्ति वाली बात नहीं है और ज्यादा इतनी भी ज्यादा कोई समस्या वाली भी ये बात नहीं है, क्योंकि हमारे मतलब भाव में वो बात ज्यादा नहीं आ रही है, पर फिर भी अगर अवॉइडेबल हो तो हम अवॉइड कर भी सकते हैं, वो बात तो ठीक है, न जाए तो क्योंकि ये व्यवहार क्या है कि हम तो वहां चले गए, मानो किसी ने हमें देखा, रोका, हमें साथ दिया, तो ऐसी स्थिति में अनादर हम करें तो सामने वाले के भी मन को दुख होता है और उस तरह से हम उठकर चले आए तब भी वो बुरा व्यवहार लगता है, तो ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आगे जाकर खड़ी हो सकती हैं, तो उस प्रकार की परिस्थिति हम न आने दें तो ज्यादा अच्छी बात है. હા રાજા, એટલે પણ આપણે જે અન્યાશ્રયમાં ભણ્યા હતા રાઈટ, વર્બલી અન્યાશ્રય, ફિઝિકલ અને મેન્ટલી એ ત્રણ અન્યાશ્રય હોય છે, તો એટલે ફિઝિકલમાં તો એ કાઉન્ટ થશે ને. આવી રીતે આપણે જો જતા હોઈએ લાઈક આવી રીતે સામે ચાલીને જોવા માટે સહી, પણ તોય એ ફિઝિકલમાં તો કાઉન્ટ થશે ને, લાઈક એનાથી અન્યાશ્રય આપણા માટે ગણાશે કે નહીં ગણાય? वही मैं कह रही हूँ कि ये अन्याश्रय वाली इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि वहां जाकर हमने किसी प्रकार की अर्चना में पार्टिसिपेट नहीं किया है, पर समस्या ये है कि एक तो ये कि अननेसेसरीली स्वतोगमन हुआ ये, और दूसरा उसमें ये है कि उस प्रकार के व्यवहार को बढ़ाने से आगे जाकर कभी ऐसी स्थिति खड़ी हो जाए कि कोई किसी ने हमें इनवाइट कर लिया, किसी ने हमारे हाथ में प्रसाद पकड़ा दिया, अब उस स्थिति में आप क्या करोगे? अगर हम प्रसाद आदि नहीं लेते हैं तब भी सामने वाले व्यक्ति का भाव खंडित हो सकता है या उसके साथ हमारा दुर्व्यवहार हो सकता है, और यदि हम ले लेते हैं तब तो फिर उस स्थिति में वो शुद्ध अन्याश्रय, इसलिए ऐसी स्थिति को हम खड़ी ना करें, ये ज्यादा अच्छी बात है, हमारे हित में है. हाँ राजा.
हाँ बोलिए। हाँ, जय दंडवत। हेलो। हाँ जय, मेरी आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। जय, मेरा पिछले समय का प्रश्न है वो बहिर्मुखता वाला। हाँ बोलिए। चौथे प्रकार हाँ की हाँ कहिए। बहिर्मुखता, चौथे प्रकार की बहिर्मुखता मेरी समझ में नहीं आ पाई क्लियर। एक बार आप और रिपीट कर दें थोड़ा सा। हाँ मेरी एक मिनट। मेरी मेरी पुस्तक में पेज नंबर 613, पुष्टि विधानम सबसे पुरानी पहला एडिशन है उसकी है। लास्ट नीचे शुरू होता है, हाँ हाँ जैसे ही नहीं कोई बात नहीं, तो नवरत्न में प्रकाश में। हाँ मैं देख लेती हूँ। चौथे प्रकार में ये कहना चाह रहे हैं कि गोस्वामी लोग जो भी विष्णुओं के पास से द्रव्य अंगीकार करते हैं प्रभु के मनोरथ आदि के लिए, वो लोग अपने बचाव में ये कहते हैं कि जब पुरुष श्री गोपीनाथ जी साधन दीपिका में ये आज्ञा कर रहे हैं कि हम हमारे जो आत्मीय वैष्णव हों उनसे, उनको हम प्रभु का दर्शन भी करवा सकते हैं और उन्हें हम हमारी सेवा में सम्मिलित भी कर सकते हैं। तो वहां वो लोग ये कहते हैं कि वैष्णव जो है वो हमारे सेवा तुल्य होते हैं, हमारे आत्मीय होते हैं, इसलिए उनसे यदि हम कोई द्रव्य अंगीकार करते हैं तब वो तनुवित्तजा का खंडन नहीं माना जाता है, ऐसा उनका कहना है। इसलिए श्याम काका जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि यदि सब हमारे परिवार ही हैं, हर कोई व्यक्ति हमारे लिए उतना हमारा आत्मीय ही है, तो उस स्थिति में हम यदि उनसे पारिवारिक संबंध से अंगीकार कर रहे हैं तो क्या हमें उनके लिए अर्थात वैष्णवों के घर में विराजने वाले प्रभु के लिए भी तो द्रव्य देना चाहिए, क्योंकि संबंध परस्पर होते हैं। आप सिर्फ लिए जा रहे हो, आप कुछ देते तो नहीं हो, तो ये किस प्रकार का भाव है? तो ये छल कपट है, ऐसा ये बहिर्मुखता यहाँ समझा रहे हैं। हाँ ये अब क्लियर होगा, शॉर्ट में हो गया, क्लियर हो गया। और ये दूसरा जो अन्याश्रम है जो अभी चल रहा था प्रकरण। हेलो। हाँ हाँ हेलो। बोलिए ना। हाँ, अन्याश्रम में चल रहा था हेलो। उसमें। हाँ हाँ आवाज आ रही है मेरी? सुनाई दे रहा तो वो है। हाँ साधन दीप का में मैंने देखा था वो 22 श्लोक है जहाँ से शुरू हो रहा है। तो उसमें भी जो है अपन अन्य देवी देवताओं में, अब जैसे गांव में जो जाते हैं लोगों ने कुछ वैसे मंदिर बना रखे हैं, मर्यादा के अनुसार उनकी सेवा पूजा है नहीं है तमाम देवी देवताओं के, और वहां से अपन निकल के जा रहे हैं। और उसमें कह दिया अपन को वहां से नमन करके निकल जाना है, बाकी उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो जब वो उसमें मर्यादा के अनुसार सेवा हो ही नहीं रही वहां, पूजा मतलब पूजा अर्चना वैसी मनगढ़ंत चल रही है, फिर भी नमन करना का जरूरी है अपन को। लोकाचार की बात कुछ नहीं है। हमें अगर किसी का देखा और हम उतने उस प्रकार के व्यवहार से हम वहां से चले जाएंगे तो जो देखने वाला व्यक्ति है उसके मन में हमारे लिए अच्छा भाव नहीं आएगा और उन्हें वो अपमानजनक भी लग सकता है, और लोक में जो है वो ऐसा हमारी हमारी इमेज बिगड़ सकती है कि ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। कारण हम जानते हैं पर लोग तो नहीं जानते, तो उनके मन में ऐसा विचार आ कि ये लोग जो हैं वो इतना भी समझ नहीं रखते, तो हमारी जो वैष्णवता है उसकी हानि हो सकती है, अर्थात लोगों के अंदर। इसलिए अच्छी बात यह है कि लोकाचार को पूरा करने के लिए हम उस प्रकार के बात को पूरा करते हैं। ठीक है, आगे समझ। और
हेलो। हाँ बोलो प्रणव भाई। करूँ आगे, राजा आगे। हाँ करो। आपका आवाज कट रहा है। नहीं तो पढ़ना जी हाँ। पूर्व क्लास में हमने जो यहाँ पर शिक्षा श्लोकी के जो प्राचीन टीकाकार है श्री द्वारकेश जी, उन्होंने जो 4 बहिर्मुखता के प्रकार बताए हैं वो देखे थे। उसमें प्रथम अन्याश्रय बताया था, जिसमें ये देखा था कि श्रौत स्मार्त कर्म आदि में जो वैदिक प्रकार से बताए हुए कर्म है, उसमें कहीं पर हम स्मृति या शास्त्र को आचरण करते हुए जो कर्म करते हैं उन्हें अन्याश्रय नहीं माना गया है कर्मांगतया। पर अन्यथा तो अगर किसी सकाम इच्छा से कोई भी देवी देवता का पूजन वगैरह कर रहे हैं, व्रत प्रार्थना आदि, तो वह अन्याश्रय है। वह प्रथम प्रकार बहिर्मुखता का बताया था। दूसरा असमर्पित वस्तु के उपभोग के प्रकार में श्री द्वारकेश जी ने यहाँ पर ये बात बताई थी कि जब भी हम कोई भी वस्तु प्रभु को समर्पित नहीं कर रहे हैं तो वहां पर प्रभु को जो हमने अपने स्वामी माने हैं और खुद को जिस प्रकार से दास माना है, तो वो जो भावात्मिका संबंध है वहां पर उसका भंग हो रहा है। इसलिए इस कारण से जो भी हमारा जीवन व्यवहार है वो समर्पित से ही होना चाहिए, और वहां पर वो जो समर्पण हम कर रहे हैं वो उसके अंतर्गत साथ ही सामिभुक्तता का प्रकार ना हो, उसकी भी ध्यान रखना है, और खास करके देव द्रव्य आदि का उपभोग ना हो। वो एक बहिर्मुखता के दूसरे प्रकार के अंतर्गत बताया था। तीसरा प्रकार असद आलाप के विषय में था कि कोई भी प्रकार का ऐसा आलाप आदि जीवन व्यवहार में जैसे कहीं ना कहीं वो अगर भगवच्चित प्रमाणता में व्यवधान लाता हो तो वो असद आलाप कहलाता है, व्यवधान ना लाता हो तो नहीं कहलाता, और वो करने से शरणागति आदि में हानि हो सकती है, इसलिए उसे तीसरा बहिर्मुखता का प्रकार बताया। और चौथा असत्संग के अंतर्गत कोई भी ऐसा भक्ति विरोधी भाव जहाँ से उत्पन्न होता हो, जहाँ से कोई प्रकार की ऐसी वस्तु, कोई व्यक्ति, स्त्री पुरुष आदि, या ऐसा कोई भी प्रकार का जीवन व्यवहार संग जो बहिर्मुखता लाता हो, उसे न करने की आज्ञा बहिर्मुखता बताई थी। और अगर द्रव्योपार्जन आदि में कहीं ना कहीं ऐसा संग करना भी पड़ता हो तो वहां पर से वापस चित्त भगवद सेवा आदि में लगे, उसके लिए भागवत कथा का नित्य नैमित्तिक पठन की आज्ञा बताई हुई है। तो ये 4 जो द्वारकेश जी ने बहिर्मुखता के प्रकार बताए, मतलब पूर्व में 8 प्रकार से पूज्य जय ने बहिर्मुखता के प्रकार बताए, उसके बाद ये 4 उनकी टीका के अनुसार प्रकार देखे थे। और फिर अभी बहिर्मुखता जो क्योंकि हर मूल जो श्लोक है उसके हर संदर्भ में हर एक शब्द की विवेचन यहाँ पर टीका में जे कर रहे हैं, तो आगे अभी बहिर्मुखता के संदर्भ में विवेचन आ रहा है। तहा शंका होत है जो बहिर्मुख भय ते आसुरावेश अरु आसुरावेश ते काल प्रवाह पात अरु काल प्रवाह पात ते सर्वनाश को भयंकर नियम तो कोऊ समझी सके, परी काहे काहे ते बहिर्मुख्य संभवे, ताकि जानकारी भय बिना कोऊ बचीवो चाहत हो तो कैसे बचे। यहाँ पर अभी शंका ये आ रही है कि बहिर्मुख होने से आसुरावेश होता है, उसके कारण काल प्रवाह में जीव पतित होता है, और ऐसे पतित होने के कारण उसका सर्वनाश हो सकता है।
तो ये जो साइकिल है बहिर्मुखता से लेकर सर्वनाश तक वो तो समझ में आ सकती है, पर कहाँ कहाँ से बहिर्मुखता हो सकती है उसकी जब तक जानकारी नहीं होगी तो कहाँ से कोई बचना चाहता हो या बहिर्मुखता से जब बचना चाहता हो तो फिर भी वो कैसे बच पाएगा, ऐसी शंका यहाँ कर रहे हैं। तो उसके समाधान में यहाँ जे आज्ञा कर रहे हैं कि तहा समाधान रूपेण ये जानिए जो बहिर्मुक्ता पद को वैसे तो प्रथम अभिप्राय भगवद विमुक्ता में है, तहा भगवद विमुख न कही जो बहिर्मुख को प्रयोग कियो, ताको अभिप्राय ऐसो है जो मर्यादा मार्ग में हूँ जीव भगवद विमुख हो सके, सो भगवद विमुख पुष्टि मार्गीय की नाई मर्यादा मार्गीय दोष हो सकत है। उसके यहाँ पर फिर समाधान में ये कह रहे हैं कि बहिर्मुक्ता इस पद का प्रयोग का अभिप्राय प्रथम तो सामान्यतया बहिर्मुक्ता से भगवद विमुक्ता समझ सकते हैं, पर भगवद विमुख न कहकर यहाँ पर बहिर्मुख का प्रयोग जो किया है उसका अभिप्राय ऐसा है कि मर्यादा मार्ग में भी जीव भगवद विमुख हो सकता है। तो भगवद विमुक्ता पुष्टि मार्ग के जैसे मर्यादा मार्ग में दोष मतलब जो मर्यादा मार्गीय जीव है वो भी भगवद विमुख हो सकता है, तो उसे भी वहां दोष हो सकता है। तो उन दोनों का परस्पर डिफरेंस बताने के लिए ये शब्द कहा है, ऐसा समझ आ रहा है। पुष्टि मार्ग में परि भगवान को स्वरूप आंतरिक भावात्मक क्या ही प्रकट होत है, अरु भावात्मना हृदय के भीतर प्रकट होय के श्री महाप्रभु की कानी ते दृष्टिगोचर बाह्य स्वरूप में अयोगोलकन न्याय ते तादात्म्य प्राप्त करत है। सो सर्वप्रथम तो व्यापी वैकुंठ स्थित पुष्टि भक्त के भावानुरूप भगवान को भावात्मक स्वरूप होत है, सोई स्वरूप भूतल तेहु पुष्टि जीवन पे कृपा करी पुष्टि लीला के सुखदान करीवे को ब्रज में पूर्ण कलान सहित प्रकट भयो। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुख्यतया पुष्टि मार्ग में तो जो प्रभु का स्वरूप है वो तो प्रथम तो आंतरिक भाव रूप है, और वही भावात्मक स्वरूप हृदय के भीतर महाप्रभु जी की कृपा दृष्टि के कारण प्रकट होता है, और वही स्वरूप का बाह्य प्रागट्य है। और जो अंतर स्वरूप है और जो बाह्य प्रागट्य है उन दोनों के बीच तादात्म्य है, और ऐसा प्रकार ऐसा स्वरूप प्रतिपादन पुष्टि भक्ति मार्ग में है। और प्रभु जो मूलतया अविच्छिन्न रूप से व्यापी वैकुंठ में प्रभु पुष्टि भक्तों के भाव अनुरूप भगवान, तो सर्वप्रथम तो व्यापी वैकुंठ स्थित पुष्टि भक्ति के भावानुरूप भगवान को भावात्मक मतलब प्रथमतया तो प्रभु जो है वो पुष्टि भक्त के भाव के अनुरूप से उसके हृदय में पधारते हैं, और जिस प्रकार से अन्य मतलब वैकुंठ आदि लोक में भी प्रभु विराज रहे हैं, तो उनका ही वही भूतल पर प्रागट्य कृपा करके प्रभु कर रहे हैं अपना पुष्टि लीला का सुखदान करने के लिए, और इसीलिए ब्रज में उसी प्रकार से प्रभु पधारे हैं। ताही स्वरूप की भक्ति कराई के पुष्टि जीवन को पुष्टि भक्ति रूप फलदान करीवे को श्रीमद आचार्य चरण को भूतल पे प्रागट्य है। इसलिए जो लीला प्रभु ने ब्रज लीला अंतर्गत अवतार काल में की, जो नित्य लीला प्रभु कर रहे हैं व्यापी वैकुंठ आदि लोक में, वही लीला का अनुभव महाप्रभु जी यहाँ पर जीव को कराने के लिए भूतल पे महाप्रभु जी पधारे थे। ताते राम श्री नरसिंह वामन आदि अनेक रूपंते भगवान ने पुष्टि लीला कीनी है, तो श्रीमद आचार्य चरण
प्रवर्तित पुष्टि मार्गी संप्रदाय में श्रीमद आचार्य चरण के भाव सो भावात्मक सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्य क्वापि कदाचन वचन सिद्ध पुष्टि स्वरूप ही भजनीय है। इसलिए यद्यपि प्रभु के अवतार अनेक रूप से हुए हैं, पर उन सभी के रूपन के अवतार के बाद भी वहां पर भी प्रभु ने अपनी पुष्टि लीला प्रकट की है। और श्री महाप्रभु जी ने तो जो ब्रजलीला अंतर्गत जो प्रभु का भावात्मक रूप स्वरूप है, वही स्वरूप को भजनीयतया जीव को वही स्वरूप की भजनीयतया सेवा पधराई है। और सगरे रूप भगवान के यथायथ वंदनीय पूजनीय स्मरणीय हो सके, परंतु स्वगुरु में नित्यतया भजनीय नाही। ताते श्रीमदाचार्य चरण के भावानुसारी भावात्मक व्रजाधीश श्री कृष्ण की शरणागति अथवा ऐसे श्री कृष्ण के श्री बाल कृष्ण, श्री मदन मोहन, श्री विठलनाथ, श्री गोवर्धन नाथ आदि अनेक रूपन में से कोई एक स्वरूप में ये मेरे माथे विराजतो मेरो ठाकुर है, ऐसो भाव जब को स्थापित करत है, तब श्री महाप्रभु के भावात्मक अनेक स्वरूपन में सेवा करता के सेवा मनोरथ को पूर्ण करिवे को पुष्टि भक्त भावात्मक एक विलक्षण स्वरूप प्रकट होत है। श्रीमद आचार्य चरण की कहानी से इसलिए प्रभु की लीला के वो वंदनीय है, भजनीय है, पर जो स्वगुरु में जो स्वरूप महाप्रभु जी ने पधराया है, मतलब उस प्रकार से अन्य स्वरूप को नित्यतया भजनीय प्रकार नहीं है। क्योंकि वहां पर श्री यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं कि जो प्रकार जो लीला प्रभु ने, जो भावात्मक लीला ब्रजाधीशतया प्रभु ने की है, और उसी के अंतर्गत जो स्वरूप जो पुष्टि भक्तों को पधराए हुए हैं, श्री बाल कृष्ण जी, श्री मदन मोहन जी, श्री विठलनाथ जी, श्री गोवर्धन जी आदि, तो उन स्वरूपों को जो जीव को जो सेवा पधराई है, वहां पर ये जो भाव आना कि ये सेव्य स्वरूप मेरे स्वसेव्य ठाकुर है, ऐसा भाव जो है वो श्री महाप्रभु जी के कारण ही सेवाकर्ता के अनुकूल प्रभु उस प्रकार के मनोरथ करना चाह रहे हैं। और ऐसा विलक्षण संबंध श्री महाप्रभु जी की कहानी से ही स्थापित हो पाया है। आगे संबंध करूं राजा दूसरे दो पैराग्राफ। शरणागति अथवा भक्ति के कथाकल्प में श्री महाप्रभु के आंतरिक भाव सो भावात्मक स्वरूप, अथवा भक्ति के सेवाकल्प में श्री महाप्रभु के तथा सेवाकर्ता के हु आंतरिक भाव सो भगवत स्वरूप भावात्मक होत है। इसलिए जो जीव शरणागत है और कथा पक्ष में है, वहां पर महाप्रभु जी की आड़ी से उसे जो उसके उसके अंतरिकतया जो प्रभु का भावात्मक स्वरूप प्रकट हो रहा है, और सेवा कल्प में जो जीव है वहां पर उसके श्री महाप्रभु जी की आड़ी कानीसु और साथ ही में सेवाकर्ता के मनोरथ के तया जो स्वरूप प्रकट हुआ है, वो उस प्रकार इस प्रकार के भाव से वहां पर भावात्मकतया सेव्य है। सो अखंड ब्रह्मवाद के विचार से तो घटपट गोगर्धवादी सकल जड़ जीव को
विस्तार ब्रह्म ही है, परिभजनीयता तहाँ ही मान्य है जहाँ श्रीमद आचार्य चरण के भाव स्व भावात्मकता को प्रागट्य है। इसलिए ब्रह्मवाद का अगर हम विचार करें तो फिर तो कपड़ा, घड़ा, गाय, गधा सब कुछ एक समान ही है। जड़ और मात्र जीव, ऐसे ही जड़ जीवात्मक जितना भी विस्तार है वो सब ब्रह्म रूप है। पर ब्रह्मरूप होने के कारण भजनीयता वहां पर नहीं प्रकट है, पर भजनीयता तो वहां ही है जहां पर इस प्रकार से भाव संबंध श्री आचार्य जी के द्वारा स्थापित किया है। सो स्मरण, भजन अथवा शरण के अनुष्ठान में जो जो सावधानी अपेक्षित है सो अतिशय भार देके श्री महाप्रभु जी ने कही दीनी है। और वो भजन सेवा के प्रकार में, स्मरण भजन आदि में जहां पर भी क्या करना क्या नहीं करना वो श्री महाप्रभु जी ने आप श्री के ग्रंथों में बताया हुआ है। तैसे ही जिनके न पालिवे थे तिनके स्मरण विरोधी, भजन विरोधी तथा शरण विरोधी जो जो दुष्परिणाम प्रकट होत है सोहु बताई दीने हैं। और इसी प्रकार से अगर स्मरण आदि, भजन आदि या शरणागति में जो जो विरोध होता हो वो भी महाप्रभु जी ने अन्याश्रय न कर्तव्य, और यहाँ पे भी यदा बहिर्मुखा यूयम, उस प्रकार से इन सब में जो विरोध हो रहा हो वो भी ग्रंथों में महाप्रभु जी ने बताया हुआ है। तीन सगरे अपराध श्री महाप्रभु के भावात्मक पुरुष पुरुषोत्तम के संग जीव को संबंध तिरोहित वे जात है। और जब कोई जीव इस प्रकार से विरोध रूप स्मरण, भजन या शरण में उन कोई भी राह पर चलता है तो उससे जो उसे अपराध होता है उसके कारण जो महाप्रभु जी ने ऐसे पुष्ट पुरुषोत्तम प्रभु का संबंध कराया है तो वो संबंध तिरोहित हो जाता है। अंतर में भाव रूप सो विराजमान भगवत स्वरूप ते विमुख होइवे के कारण जीव बहिर्मुख कयो जात है, तासो बहिर्मुखता पुष्टि मार्गीय दोष है। और जब प्रभु ऐसे तिरोहित हो जाते हैं तो ऐसा जो भगवत स्वरूप विराजमान था भाव रूप तया, उससे वह जीव विमुख हो रहा है और उसके कारण ही वो उसे बहिर्मुख कहा जाता है, और ये बहिर्मुखता पुष्टि मार्गीय दोष है। तासो श्रीमद आचार्य चरण के उपदेश अनुसार शरणागति अथवा भक्ति किए थे श्री महाप्रभु के भाव सो विभावित पुरुषोत्तम को प्रागट्य, अरु श्रीमद आचार्य चरण के उपदेश विरुद्ध गुरुतर अपराधनते श्री महाप्रभु भाव विभावित पुरुषोत्तम को तिरोधान होते हैं। इसलिए ही जो महाप्रभु जी ने आप श्री के उपदेश द्वारा जो शरणागति और भक्ति जब जीव करता है तब महाप्रभु के द्वारा ही जो भाव सो प्रभु का प्रागट्य हुआ है वो हो पाता है। और जब जाके वो उन उपदेशों से विरुद्ध जाता है तो वो विरुद्धता के अपराध के कारण वही जो भावात्मक स्वरूप है वह तिरोहित भी हो जाता है। ताकरी भगवद भाव को हु तिरोधान होत है, अरु ताते जो भगवद विमुक्ता होत है सोई पुष्टि मार्ग में बहिर्मुक्ता कही जात है। या को जानी लेवे पे भगवद अंगीकृत पुष्टि जीव को बहिर्मुक्ता ते बचिवे को उपाय हूँ सुबोध्य हो जात है। इसलिए इस प्रकार से प्रभु का तिरुभाव होने के कारण वह जीव भगवत विमुख हो जाता है, और यही जो विमुक्ता है वो बहिर्मुक्ता कही गई है। और इसीलिए ये भगवत विमुक्ता और जो बहिर्मुक्ता है मार्ग में उसका स्वरूप अगर जीव समझ लेता है तो फिर उसे ये प्रकार की जो भी भगवदीय जीव है जिसका मार्ग में अंगीकार है उसे किस प्रकार से ऐसी बहिर्मुक्ता से बचना उसका उपाय भी समझ में आ सकता है। क्योंकि प्रथम यहाँ पर शंका यही थी कि जब तक पता ना हो कि कहाँ से बचना है तो जीव बहिर्मुक्ता से कैसे बच पाएगा।
तो इस प्रकार से स्वरूप बहिर्मुखता का समझने से उससे बचना शक्य बन पाएगा। ऐसा इतना यहाँ पर राजा समझ आ रहा है। प्रणाम। हाँ, यहाँ रखते हैं, इसका जो विचार हम कल के सेशन में कर लेंगे।